لاہور سے رپورٹ کرنے کرائم رپورٹر احمد علی۔ ویٹرز کا شادی ہال میں ہی واردات کرتے ہوئے لاکھوں کا سامان چوری کرنے کا معاملہ۔ شادی ہال کے ویٹرز نے شادی ہال ہی میں بڑی واردات ڈال دی اور لاکھوں روپے کا سامان لے اڑے۔ پولیس کے مطابق یہ نقب زنی کی بڑی واردات تھی، جس کے بعد کاہنہ پولیس کے انچارج چوکی حلوکی قاسم علی نے ٹیم کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کارروائی کرتے ہوئے 3 رکنی ڈکیت نقب زن گروپ کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے چند روز قبل ڈیفنس روڈ پر واقع شادی ہال میں گن پوائنٹ پر واردات کی تھی اور شادی ہال سے 5 AC چلر، 2 ڈیپ فریزر لے اڑے تھے۔ ملزمان شادی ہال میں ویٹرز کا کام کرتے تھے۔ پولیس حکام نے بتایا ہے کہ ملزمان نے اعتراف کیا ہے کہ ان کا شادی ہال کے مالک کے ساتھ لین دین کا معاملہ چل رہا تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے مل کر واردات کی۔ پولیس نے بعد ازاں ملزمان سے لاکھوں روپے مالک کے 5 AC چلر اور 2 ڈیپ فریزر برآمد کر لیے۔ ملزمان میں چاند، بابر اور شان شامل ہیں، جن کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ 6 محرم الحرام کے حوالے سے لاہور سٹی ڈویژن میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ SP سٹی بلال احمد نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ امام بارگاہ عطیہ اہل بیت 9 لکھاں کی سیکیورٹی چیک کی اور سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کو مکمل الرٹ رہنے کی ہدایت کی۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں عمران جٹ اپنی رپورٹ میں۔ ہاں جی بالکل، 6 محرم الحرام لاہور سٹی ڈویژن میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ SP سٹی بلال احمد نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ امام بارگاہ عطیہ اہل بیت 9 لکھا کی سیکیورٹی چیک کی گئی۔ سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کو مکمل الرٹ رہنے کی ہدایت۔ امن و امان کے لیے حکومتی احکامات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تمام مجالس اور جلوسوں کو فل فور سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ SP سٹی بلال احمد کا کہنا ہے کہ اس الرٹ سیکیورٹی میں کوئی غلطی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے۔ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ محمد نعیم سندھو کی ہدایت پر چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کونسل ٹوبہ ٹیک سنگھ مہر انور بیگ سیال کا چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کمالیہ علی رضا کے ہمراہ محرم الحرام کے روٹس کا معائنہ کیا۔ چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کونسل مہر انور بیگ سیال کا کہنا ہے جلوس روٹس امام بارگاہوں کے روٹس کو کلیئر کرایا جا رہا ہے۔ عزاداروں اور جلوس لائسنس داران کی شکایات کے ازالے کے لیے میں اور ٹیم کے دیگر افسران ہر وقت حاضر ہیں۔ چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کونسل مہر انور بیگ سیال نے مزید کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے تعاون سے محرم الحرام کو پرامن منایا جائے گا۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی علی رضا کا کہنا تھا کہ جلوسوں اور مانیٹرنگ کی کڑی نگرانی کے لیے CCTV کیمراز لگا دیے گئے ہیں۔ میونسپل کمیٹی کمالیہ میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے اور عملے کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق DHA بہاولپور کی جانب سے لودھرا میں کامیاب روڈ شو کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا مقصد شرکا کو DHA بہاولپور کے پریمیم پروجیکٹ آرچرڈ انکلو کی متعلق آگاہی دینا اور دیگر کاروباری اور سرمایہ کاری کے موقع سے متعارف کروانا تھا۔ تقریب میں تاجران، انویسٹرز، بلڈرز، ڈیولپرز، وکلاء، کاشتکاروں سمیت دیگر نمایاں شخصیات نے شمولیت کی۔ ڈائریکٹر مارکیٹنگ بریگیڈیئر علمدار حسین نے آرچرڈ انکلیو میں موجود بین الاقوامی معیار کی سہولیات کے ساتھ ساتھ اس میں منافع بخش سرمایہ کاری کے متعلق معلومات فراہم کی۔ شرکا نے پروجیکٹ کو سراہا اور اس میں رہائش اختیار کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ پروجیکٹ کا بیلٹ 1 اگست کو ہوگا، تاہم درخواستیں جمع کروانے کا آخری تاریخ 25 جولائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن نیوز کے ساتھ میں ہوں میں نظارہ رخ کرتے ہیں خبروں کا۔ اسلام آباد تھانہ کھنہ پولیس کی بڑی کارروائی، شہری کو قتل کرنے والا سفاک مجرم گرفتار۔ پولیس نے قتل میں ملوث مجرم محمد حسین کو گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے اینکر پرسن ملک احتشام فاروق کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد تھانہ کھنہ پولیس کی بڑی کارروائی، شہری کو قتل کرنے والا سفاک مجرم گرفتار۔ پولیس نے قتل میں ملوث مجرم محمد حسین کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے تھانہ کھنہ کی حدود میں اسلحہ چین سے فائرنگ کر کے امجد خان کو قتل کر دیا تھا۔ DIG اسلام آباد نے وقوع کا نوٹس لے کر مجرم کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے تھے۔ SP سواں زون کی زیر نگرانی پولیس ٹیم نے جدید تکنیکی اور سائنسی تقاضوں پر تفتیش کرتے ہوئے وقوع میں ملوث مجرم کو گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر DIG اسلام آباد محمد جواد طارق کا کہنا تھا کہ ملزم کو ٹھوس شواہد کی روشنی میں چالان عدالت کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ اس موقع پر انہوں نے SHO کھنہ عامر حیات کی بھی تعریف کی۔ کیمرہ مین قادر کے ساتھ ملک احتشام فاروق، اینکر پرسن اسلام آباد۔
और से रिपोर्ट कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर हाफिज काशिफ सिंधु। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक DIG इन्वेस्टिगेशन दफ्तर में मसूल होने वाली कंप्लेंट्स की सुनवाई। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा ने शिकायत को तफसीलन सुना और मौके पर ही अहकाम जारी किए। तफ्तीश से मुताल्लिक शिकायत पर चंद कंप्लेंट्स की अपने दफ्तर में इंक्वायरी करने के अहकाम जारी किए। नाकस तफ्तीश पर चंद केसेस को तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में मार्क किए और तफ्तीशी अफसरान को शोकास नोटिस भी जारी किए। चंद शिकायत के मुतल्लिक डिविजनल SPs इन्वेस्टिगेशन को फौरी तौर पर अजाला करने का हुक्म। DIG इन्वेस्टिगेशन ने डिविजनल SPs इन्वेस्टिगेशन को कॉल करके मुतल्लिका मुकदमात की तफ्तीश बारे अहकाम जारी किए। इस मौका पर DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा का कहना था कि मुकदमात की तफ्तीश के हवाले से अवामुन्नास की शिकायत का फौरी इजाला किया जा रहा है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। अफसरान आने वाले शहरियों के साथ होश अखलाकी से पेश आएँ, अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाएं। अवाम के मसाइल के हल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हमा वक्त खुले हैं। खबर शामिल करते हैं नौल प्लाट से। हमारे नुमाइंदे राइस जुल्फ़कार अली की रिपोर्ट के मुताबिक नौल प्लाट थाना सदगरा पुलिस की SHO मोहम्मद सलीम की सरबराही में कार्रवाई। थाना सदगरा के नवाह 13-1-8 में हतून के साथ ज़्यादती में मुलव्विस मुलज़म गिरफ्तार। पुलिस ने मुलज़म को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुलज़म ने हतून के घर में दाल होकर ज़्यादती की। मुलज़म अकीब मुतासरा हतून के घर के करीब रहता है। ज़्यादती करने के बाद मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने 2 घंटे के कलील वक्त में गिरफ्तार किया। नौल प्लाट थाना सदगरा पुलिस की SHO मोहम्मद सलीम की सरबराही में कार्रवाई। थाना सदगरा के नवाह 13-1-8 में हतून के साथ ज़्यादती में मुलव्विस मुलज़म गिरफ्तार। पुलिस ने मुलज़म को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुलज़म ने हतून के घर में दाल होकर ज़्यादती की। मुलज़म अकीब मुतासरा हतून के घर के करीब रहता है। ज़्यादती करने के बाद मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने 2 घंटे के करीब वक्त में गिरफ्तार किया। मुलज़म को कानून के मुताबिक करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज की नेवर अगेन मुहिम के तहत ख़वातीन के साथ ज़्यादती पर पुलिस ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पेशावर 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से पुलिस की जानब से खसूसी पेट्रोलिंग का इंतजाम किया गया है। SSP ऑपरेशन मसूद बंगश ने कहा कि सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं ताकि किसी भी नाहुशगवार वाक़े से बचा जा सके। अहम जुलूसों और मजालिस के रास्तों पर पुलिस एहलकारों की भारी नफरी तैनात की गई है। मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का अमल सख्त कर दिया गया है। एलीट फोर्स, रिजर्व, नफरी और स्पेशल ब्रांच भी मुतहरिक है। ड्रोन कैमरों और CCTV के जरिए निगरानी की जा रही है। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मकामी उलमा और कम्युनिटी लीडर से भी राब्ते में हैं। किसी भी इमरजेंसी के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है। फ्लैग मार्च का मकसद ये है कि एक तो सेंसिटाइज़ कर लिया जाए और सारी पुलिस को मोबिलाइज़ कर लिया जाए मुहर्रमुल हराम के हवाले से, और ऐसी साजिशी अनासर या शरपसंद अनासर जिनके जहन में कोई साजिश है या कोई दहशतगर्दी वाली जो अगर कोई प्लानिंग है तो उन तक एक मैसेज आए कि पुलिस अभी जो है ना बिल्कुल चौकन्ना है और कोशिश पूरी करेंगे कि मुहर्रमुल हराम एक बाअहसन तरीके से हम उसको कामयाबी के साथ और सेफली जो है ना मुकम्मल करें। सेंसिटिव कितने पेशावर मामला का बता दीजिएगा, कितनी नफरी ड्रोन्स कैमरे क्या क्या? जी, ओवरऑल 12,000 के लगभग पुलिस फोर्स तैनात है, जिसमें लेडीज़ पुलिस, स्पेशल ब्रांच, SSU की नफरी और इसके अलावा जो है ना बम डिस्पोजल यूनिट्स, ये सारे तैनात होंगे। 4 ड्रोन कैमरास के ज़रिए हम मॉनिटरिंग करेंगे। 195 कैमरास हैं राउट्स पर जो 4 दिनों में जो है ना हम उन जुलूसों को देख सकेंगे, और एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पर सख्ती से चेकिंग जारी है। शहर में 144 का नफाज हो चुका है, जिसमें टिंटेड गिलासेस, डबल सवारी और अस्तर की नुमाइश पर पाबंदी है। सर, मोबाइल सर्विस बंद करने वगैरह से क्या सिफारिशात की गई? जी, उसमें हमने जो है ना मखसूस मकामात पर कुछ दिनों के लिए जो है ना वो कल से जो ख़ास एरियाज़ हैं उसमें मोबाइल सर्विस बंद होगी। रात को एक अफसोसनाक वाक़या वैसे ख्वाजा सरा के कत्ल को, उसके पेशरफ में क्या हुआ, मोहरिकात क्या थी, वजूहात क्या थी, अब तक क्या पेशरफ होगी सर? जी बिल्कुल, उसमें हमारी तफ्तीश जारी FIR हो चुकी है और उसमें उम्मीद है कि जल्द अज जल्द वो लोग गिरफ्तार हो चुकेंगे। उनका कोई आपस का शख्साना था, कोई मसला था, तो इस वजह से ये हुआ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हुरम गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों और रीफिलिंग का गैरकानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्ती से क्रैकडाउन की हदायत की है। उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस की गैरकानूनी रीफिलिंग के अमल को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भरपूर अंदाज में किरदार अदा करे और कमेटी के अरकान फील्ड में मौसर अंदाज में कार्रवाइयाँ अमल में लाएँ ताकि एलपीजी की डीकैंटिंग का खात्मा हो। उन्होंने हदायत अपनी ज़ेर सदारत मुनक्दा इजलास में गैरकानूनी तरीके से एलपीजी सिलेंडर की रीफिलिंग के रोकथाम के हवाले से बरोकार लाए गए इक़दाम का जायजा लेते हुए कही। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी सदर, महकमा सिविल डिफेंस, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, महकमा तालीम, मोटरवे पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान इजलास में मौजूद थे, जबकि दीगर तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने बज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर थाना अब्बास नगर की हदूद में पुलिस मुकाबला, संगीन मुकदमात में मुलव्विस मुलज़म जख्मी हालत में गिरफ्तार। गुज़िश्ता सब थाना अब्बास नगर पुलिस ने चक नंबर 36 BC मुलज़म मुमताज़ इकबाल को गिरफ्तारी के लिए रेड किया। मुलज़म डेरे पर अपने 2 कोस नामालूम साथी मुलज़मान के साथ छुपा हुआ था। पुलिस मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए डेरे की दीवार पर चढ़ी तो सहन में लेटे 2 कोस मुलज़मान ने फायरिंग शुरू कर दी। छत पर लेटे मुलज़म ने पुलिस पार्टी के डर से छत से छलांग लगा दी। 2 कोस नामालूम मुलज़मान फायरिंग करते हुए रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। मुलज़म मुमताज़ इकबाल की छत से छलांग मारने की वजह से जख्मी हो गया था। थाना अब्बास नगर पुलिस ने मुलज़म को हिरासत में लेकर रेस्क्यू करते हुए फौरन अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं सूबाई दारकूमत लाहौर से। लाहौर फाउंडेशन स्कूल बोगलपुरा ब्रांच में चोरी की वारदात हुई है। चोर स्कूल में दाखिल हुए और स्कूल ऑफिस से नकदी और 8 अदद लैपटॉप चोरी करके फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। अगर कोई इस वाक़े से मुतल्लिक़ कोई खबर रखता है तो स्कूल इंतज़ामिया को फौरी आगाह करे। कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट मीर थाना बिन कासिम की हदूद में आज भी जहरीली शराब मुसलमानों को ब्लैक पर फरोख्त जारी। मुतल्लिका इदारे कार्रवाई करें। आज भी बिन कासिम शाह टाउन आइडियल मार्ट के सामने थाना बिन कासिम की हदूद में डीपू नामी शख्स, जय कुमार उर्फ विकी, रेजुमिर राजू नामी शख्स और दीगर इन माफिया के लड़कों का ईदू गोर बिन कासिम मीर कराची में जहरीली शराब फरोख्त जारी। मजीद देखिए आपदा बाजकानी क्राइम रिपोर्टर की इस वीडियो में। छोड़ रही हूँ, ये सारी आप देख सकते हैं किसके कहने पर चल रहा है। नीचे करो हाथ, किसके कहने पर ये सब चल रहा है। आप दिखाओ पहले अपना कार्ड, कौन से डिपार्टमेंट में हो? मेरे डिपार्टमेंट से आपको क्या करना, लाइसेंस है आप लोगों के पास? है, लाइन दिखाएं मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? मोबाइल छीन के मैं यहाँ से जाऊँगी, 15 पर कॉल करूँगी मैं। यहाँ पर आप धंधा कर रहे हो। मैम कौन से चैनल से? जिस भी चैनल से हूँ आप मुझे बताएं, लाइसेंस है आप दें मुझे लाइसेंस दें मुझे, लाइसेंस लाइन तो देना मुझे लाइसेंस। दुकान पर मैं क्या करूँ, आप लाइसेंस दें मुझे। ये यहाँ पर मेरे साथ बहसबाजी चल रही है, ठीक है। मेरी पिक्स वगैरह निकाली जा रही है, ये देखें। ये यहाँ पर गैर मुसलमान और मुस्लिम लोगों को शामिल किया जा रहा है इस काम में, इस धंधे में। और ये सरेआम रोड के ऊपर ये सप्लाई इनकी चल रही है। आप तमाम तर लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये मुझे डरा भी रहे, धमका भी रहे और जान लेने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं मुझे। ये है हमारा पाकिस्तान जिसमें तब्दीली आ चुकी है, और वो भी सरेआम। ये साहब की बाइक, और ये इसकी बाइक प्लेट नंबर। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल DIG ट्रैफिक पुलिस पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल राना ताहर रहमान खान की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल मिर्ज़ा तनवीर बेग की सरपरस्ती में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज साहिवाल में पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के मोटर कार के बैच नंबर 136 की अख्तामी तकरीब गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में मुनक्कद हुई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल मिर्ज़ा तनवीर बेग ने
ट्रेनीज को मुबारकबाद और इसनाद तकसीम की। इंस्पेक्टर ट्रैफिक हेडक्वार्टर हिजर हयात अंजुम ने पास आउट होने वाले तलबा को ट्रैफिक कवानीन रोड सेफ्टी के मुताल्लिक खुसूसी ब्रीफिंग दी और इदारे के नज़्म नस्क को मलहूज़े हाथ रखते हुए बेहतरीन तरीके से बैच की ट्रेनिंग करवाने पर प्रिंसिपल अब्दुर्रहमान और इंचार्ज अतहर अब्बास की कोशिशों को सराहा। तकरीब के अख्ताम पर ट्रेनीज में रिफ्रेशमेंट का अहतमाम भी किया गया, जिस पर तमाम तलबा ने ट्रैफिक स्टाफ साहिवाल और अफसरान बाला की काबिशों को सराहा और खराज तहसीन पेश किया। हारून आबाद से खबर शामिल करते हैं। कौमों की तारीख गवाह है कि ज़वाल कभी अचानक नहीं आता। यह आहिस्ता आहिस्ता फ़िक्री तगाफुल, तालीमी पसमानदगी और इज्तिमाई बेहिसी की शक्ल में परवान चढ़ता है, यहाँ तक कि कौम अपनी पहचान, इक़दार और नस्बुल आइन खो बैठती है। बदकिस्मती से आज उम्मत मुसलमान बिलखसूस नौजवानों तबका इसी नाजुक मरहले से गुजर रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला बहावलनगर के ज़िले में हाजी मलक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि हमारे तालीमी अदारे महज इसनाद की तकसीम गाहें बन चुके हैं। नौजवान सिर्फ नंबरों की दौड़ में मसरूफ़ हैं। दीन, तहजीब, नज़रिया और इक़दार ये सब कुछ किताबों, तकरीरों और पोस्टरों तक महदूद होकर रह गया है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम फिर भी खामोश हैं। ये वक्त सिर्फ नारे लगाने का नहीं, नज़रियात देने का है, सिर्फ जोश का नहीं, शऊर बेदार करने का है। हमें तमाशाई नहीं, उम्मत की बाजियाबी की अलमबरदार बनना है। अगर आज हम भी गफलत में रहे तो कल का मोरख हमें सिर्फ एक गैर मुसर तलबा ग्रोह के तौर पर याद करेगा, लेकिन अगर हमने शऊर, तरबियत और क़यादत का हक अदा कर दिया तो तारीख़ हमें उम्मत के फ़िक्री मुजद्दिदों में शुमार करेगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है, तमाशाई बनना है या कारवां का रहनुमा। तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श जतोई सेवन शरीफ में मुहर्रम हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की शहादत के मौका पर जुलूसना का मातमी जुलूस सहन जाफरिया से डॉक्टर अब्दुल मजीद के साहबजादे डॉक्टर इकबाल जाफरी ने निकाला, जिसमें अज़ादारों और मोमिनीन ने शिरकत की और शोहदाए करबला को राज अक़ीदत पेश किया। जबकि जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ दरगाह छट्टू अमरानी पर अहतमाम पजीर हुआ। शहरियों ने मातमी जुलूस के रास्तों पर लंगर और मीठे शरबत का इंतज़ाम किया था। मातमी जुलूस में म्यूनसिपल कमेटी 7, सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट हस्पताल 7 और 7 वापटा का अमला 7 पुलिस हाई अलर्ट रही। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ का मुहर्रम हराम के हवाले से इमाम बारगाहों मजालिस का दौरा। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे सिटी ब्यूरो चीफ मैडम ज़ाहदा परवीन सैयद की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद मोन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कामरान असगर ने मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और मजालिस के मकामात का मुआयना किया। इस मौका पर उन्होंने सिक्योरिटी प्लान, सफाई के इंतजाम, रोशनी, पानी की फराहमी और दाखिली खारजी रास्तों की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की है कि तमाम मुतल्लिका महकमे बाहमी ताउन से अमन व अमान को यकीनी बनाएं ताकि शहरी पुरअमन माहौल में मजहबी रसूमात अदा कर सकें। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात को मुस्तर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कामरान असगर ने सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान से मुलाकात और कंट्रोल रूम का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने सिक्योरिटी प्लान, कैमरों की मॉनिटरिंग, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम और फील्ड फोर्स की तैनाती का जायजा लिया। डीपीओ ने हदायत दी है कि मुहर्रम हराम के दौरान तमाम एहलकार अलर्ट रहें और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए भरपूर तैयारी रखें। उन्होंने कंट्रोल रूम स्टाफ को भी हदायत की है कि हर लम्हे की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।